हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस स्टडी कर रहे हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम रेट कांस्टेंट से कैसे डिटरमाइन करते हैं और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ठीक है। उसके कुछ ग्राफ्स भी बताए और उसका कॉन्सेप्ट भी बताया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम कौन सी रिएक्शंस हैं जिनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहेंगे। ओके, लेट्स सी। बेटा, जब कभी भी कोई रिएक्शन को कहा जाए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, देन व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस? रेट लॉ वी स्टडीड ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, what is rate law? Rate law, if any reaction like this, if it is said to be first order reaction, ठीक है, और what is the rate expression? It is a की power alpha b की power beta. If it is first order reaction, then alpha plus beta sum should be equal to 1. It will give you order of reaction. ओके, दैट मीन्स वी कैन से चाहे जितने भी रिएक्टेंट्स हो, उनकी जो पावर्स आएंगी रेट एक्सप्रेशन में, उनका सम अगर 1 आ गया तो रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट हाउ कैन यू राइट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बेसिकली दोज रिएक्शंस आर said to be a first order reaction. Those reactions are said to be a first order reaction if rate of such reactions is found to be directly proportional to the change in concentration of reactants. Change in concentration of the reactants. That is what rate of the reaction is directly proportional to the change in concentration to power 1. Basically this. Basically rate of the reaction is said to be first order if rate of the reaction is directly proportional to the concentration, that is the power 1. ये पावर ही है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करता है। ओके, एंड देन फ्रॉम रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं बेटा आप इसको, dx over dt is equal to k, और जो भी कंसंट्रेशन होगी इसकी पावर 1, रेट इक्वेशन है, रेट एक्सप्रेशन है। ओके, दैट मीन्स इफ यू वांट टू प्लॉट अ ग्राफ for the first order reaction, write rate and write concentration, and it should be directly proportional, and definitely the slope of the graph will give you rate constant. That is directly proportional का मतलब आप समझते हो, this one. Okay, now what is the unit of rate constant for the first order reaction? Unit of rate constant already discussed. Unit of rate constant for the first order reaction. Unit of rate constant for the first order reaction. This is the moles per liter per second. This is the moles per liter. Remember, it is only time inverse. Maybe second inverse, maybe some other minute inverse और hour inverse. ठीक, अब बेटा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन टाइप है जिसपे काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं और मेन अंडरस्टैंडिंग है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। वैसे मैंने आपको बहुत बार बोला, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आप रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या ज़ीरो ऑर्डर है, जब तक कि हमें किसी भी रिएक्शन का रेट इक्वेशन ना दिया हो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ना गिवन हो, या कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा ना गिवन हो, या एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने का कोई कंसेप्ट ना गिवन हो, या इस जो पावर्स हैं कंसंट्रेशन टर्म्स वो ना गिवन हो। Molecularity can be predicted just by seeing the equation if we
have an elementary reaction, but order of reaction never. फिर भी आपको कुछ लर्निंग पॉइंट्स दे रहा हूँ। जैसे पहले भी बताया कि अगर हमारे पास कोई फोटो केमिकल रिएक्शन है, photochemical reactions are those which mainly occur in presence of sunlight. Like this, when hydrogen and chlorine reacts to form HCl in presence of sunlight, this is the photochemical reaction. Such type of reactions are generally of zero order. Generally of zero order. Similarly, decomposition of radioactive substances. You know radioactive substances? Radioactive substances like uranium, like francium, like radium, okay, some other also, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे अभी, ठीक है, which can decompose itself, जो अपने आप डिके करते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं in terms of alpha, beta and gamma radiations. Such type of substances, decomposition of the radioactive substances, the radioactive decay are also mostly, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, radioactive decay are first order reaction generally. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत बार एक्सपेरिमेंटली स्टडी किए गए, तो इनके ऑर्डर यही आते हैं, बट फिर भी आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर देख के नहीं बता सकते। ओके, नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा एक है इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका डेरिवेशन आ सकता है इंटीग्रेटेड rate equation for the first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा? ओके, सपोज दिस इज द रिएक्शन, लेट्स सी इन डिटेल। मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज गिवन, मैंने एक जनरल एग्जाम्पल लिया, इट ऑल्सो हैव सम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मान लीजिए बेटा t इक्वल टू 0, इट्स कंसंट्रेशन इज A नॉट, कई किताबों में C नॉट लिखा है, ठीक है, मैंने इसको ले लिया A नॉट, मे बी C नॉट, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट्स कंसंट्रेशन बिकम सपोज A नॉट माइनस x और C नॉट माइनस x or Ct, that is the concentration at time t, representation है, and the sum of the product is formed, initially the product 0 है। ये कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास, then what should be the rate equation of for this first order reaction? What is rate equation? आप लिखोगे इसकी रेट इक्वेशन आएगी dx over dt directly proportional, dx over dt rate of this reaction is directly proportional to the concentration of the reactant at time t, and because this is the first order reaction so it is power 1. Okay, this is the rate equation, जिसे आप dx over dt is equal to k into a naught minus x की पावर 1 लिख सकते हैं। What is a naught? Initial concentration. What is a naught minus x? Concentration of reactant at time t. बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स में प्रोडक्ट्स का ज़्यादा रोल नहीं होता, मेनली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। हाँ, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है देन फिर प्रोडक्ट्स की भी कंसिडरेशन होगी, इसलिए यहाँ पे क्या है हमें कोई मतलब नहीं। So this is the rate equation, where is the k, the rate constant. Now how can you solve this? इसको आप लिख लो dx over a naught minus x, it is k dt. This is the differential form of the first order equation. Differential form of
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखना चाहते हो, सो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बोथ साइड। इंटीग्रेट the above equation in both sides. This is the integration sign. It is equal to k dt. Okay, और ये a नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन फिक्स है, x वेरी कर रहा होगा x के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा, और इसको आप इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आता है। जो लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं अप्लाइड फिजिक्स में, फिजिक्स के स्टार्टिंग में ही कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस कराते हैं टीचर्स, वो बहुत यूजफुल होता है। क्या है? एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है आई इज द इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। Okay, so first of all you have to integrate this one as well as find out the integrated constant value. बेटा यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको कोई फिजिक्स तो करा नहीं रहा, बट फिर भी अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में। ये 1/x का टर्म है, इसका इंटीग्रेशन आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग ऑफ e बेस a नॉट माइनस एक्स इक्वल टू, ये इसका इंटीग्रेशन है k dt का इंटीग्रेशन हो गया t, k कांस्टेंट है बाहर आ गया, एंड दिस इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट i। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस i इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सो टेक दिस कंसिडरेशन, यू नो एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, अगर t 0 है तो प्रोडक्ट्स कुछ भी फॉर्म नहीं होते। Use this condition here and put this, you get minus log e a naught minus x equal to इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, x की वैल्यू भी 0 होगी और t की वैल्यू भी 0 होगी। वी गेट इंटीग्रेटेड कांस्टेंट माइनस लॉग a naught. Put this value here, you get minus log a naught minus x equal to kt minus log a naught. Take minus sign common. This is the exponential log. Remember this thing. You get log e base a naught minus x equal to minus kt plus log e base a naught. This is the expression for the first order kinetics. That means if we plot a graph between log of e base, इसको ना आप ई बेस की बजाय 10 बेस कर लो। 10 बेस इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब भी हम सॉल्व करेंगे तो 10 बेस हो जाता है, मैथमेटिक्स है, यू शुड नो। लॉग 10 बेस a नॉट माइनस एक्स जब भी करोगे तो फिर आपको 2.303 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ डिवाइड हो जाएगा। नाउ इट ऑल्सो बिकम्स लॉग 10 ऑफ a नॉट, मैंने पूरे से फिर एक कॉमन ले लिया। ठीक, 2.303 मैथमेटिकल टर्म है, समझ गए। अब इसको आप अपने तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो जैसे आपको मन करे। जैसे सपोज अगर मैं इसको इधर ले आता यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं अगर इधर ले जाऊँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा log 10 बेस a नॉट माइनस log 10 बेस a नॉट माइनस x, इट इज इक्वल टू kt ओवर 2.303। ठीक है, ये माइनस साइन है ना, मैंने इनको दोनों को एक तरफ कर दिया माइनस साइन के साथ, इसको इधर ले गया और फिर ई बेस को 2.303 से मल्टीप्लाई करके 10 बेस कर दिया। नाउ यू कैन सॉल्व इट, यू गेट kt इक्वल टू, ये लॉग एक्सप्रेशन है 1/2 kt इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा। चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो एंड इट इज kt ओवर 2.303, k इज द कांस्टेंट, t इज द टाइम। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर यू गेट kt इक्वल टू
या k इक्वल टू 1/t log of 10 base a naught over a naught minus x and here multiplied by 2.303. ये बेटा एक एक्सप्रेशन मिल गया, ये एक्सप्रेशन मिल गया। अगर आप इसे नहीं देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर रहा हूँ। दिस इज द एक्सप्रेशन, इट इज़ वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वेयर ये आपको डेरिवेशन आ सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए, टेक इक्वेशन t इक्वल टू 0 a नॉट t टाइम पे a नॉट माइनस एक्स फॉर द रेट इक्वेशन dx ओवर dt प्रोपोर्शनल टू दिस पावर 1, ठीक है। और इसको फिर हमने सॉल्व करा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया यहाँ पे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ ये जो वैल्यू आई है, इसको फिर हमने ऐसे लिखा dx ओवर a नॉट माइनस एक्स इक्वल टू k dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की। दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट। आप चाहो तो डायरेक्ट इक्वेशन ये लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा। अगर माइनस नहीं कॉमन करता है, इसको इधर भेजता हूँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी। ये ई बेस पे है, ई बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, इसलिए 10 बेस कन्वर्जन करा। 10 बेस पे 2.303 की इंट्रोडक्शन होती है। इसको इसमें से माइनस करा, इस माइनस फॉर्मेट को लॉग के फॉर्म में लिखा के टी ओवर दिस, और फिर यहाँ से के रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप देख लेना। अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ। फ्रॉम हियर फाइनली वी फाइंड आउट k इक्वल टू 2.303/t log a नॉट ओवर a नॉट माइनस एक्स। a नॉट और a नॉट x क्या है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। इस रिएक्शन के लिए t इक्वल टू 0 पर अगर ये a नॉट है तो t टाइम पर a नॉट माइनस एक्स है, ठीक है। इसे मैंने c नॉट और इसको c नॉट माइनस एक्स या फिर ct भी कहा था। ओके, सो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स। इनिशियल अमाउंट ये है, कुछ देर के बाद अमाउंट ये हो गई, तो रेट कांस्टेंट क्या है और टाइम क्या है यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। कैसे? अगर आप इसको kt इक्वल टू 2.303 log 10 बेस, मान लीजिए मैंने इसको c नॉट और इसको ct लिख दिया, ठीक है, तो आप इसको इसके नीचे ले आओ ऐसे, c नॉट ओवर ct लॉग फॉर्मेट में, इसको 10 की पावर kt ओवर 2.303 लिख सकते हो अगर हम यहाँ से लॉग हटा देंगे। एंड फ्रॉम हियर वी गेट ct इक्वल टू c नॉट 10 की पावर माइनस kt ओवर 2.303। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर e फॉर्मेट में लिखोगे फिर 2.303 नहीं रहेगा, e raised to the power minus kt आ जाएगा, where ct is the concentration at time t, c naught is the concentration taken initially. With the help of this equation, we can solve out the numericals based on first order reaction. Okay? अगर बेटा आपको कहीं पर ऐसे लिखा है कि this is the half life, हाफ लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। हाफ लाइफ का मतलब है कि हाफ लाइफ को टी ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ लाइफ का मतलब है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, जितना टाइम लगता है उसे फिर हम उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं। तो कई बार रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ में एक रिलेशन बनाने की कोशिश होती है। देखिए, फॉर दिस रिएक्शन इफ t is equal to half life then we can say x is equal to a naught by 2। 50% अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो इसका मतलब है x की वैल्यू a naught by 2 होगी, 50% कंप्लीट होगी। अगर आप ये वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो यू गेट k is equal to 2.303 by t, t की जगह t half log it is a naught and it is a naught by 2। अगर a naught में से a naught by 2 चला गया तो a naught by 2 ही बचा, ये a कैंसिल हो गया, 2 ऊपर भाग गया, 2.303 by t half it becomes log 2। और अगर आप इस log 2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, do you know the log 2? log 2 is 0.3010।
तो जो k की वैल्यू आएगी बेटा 2.303 by t half log 2 is 0.3010 and overall by solving you get 0.6932 by half life t half. It is not t by 2, it's a representation of half life, and half life is the time required to complete 50% and k is the rate constant. इस पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हाफ लाइफ किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन ड्राइव हुई है मेनली दिस वन, इसमें बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, उनके न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो इनके क्वेश्चंस होंगे आप इनको सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल्स करिए, और फिर इसमें जो डाउट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे। मैं एक वीडियो इसका न्यूमेरिकल्स का भी भेज दूंगा, ठीक है। इसको बार बार देखना, काफ़ी यूजफुल है। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।